So, good afternoon, class. Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, ma'am. Okay. So, let's join fast and we'll be starting. As I'm not able to take your class from the past 2 days. So, let's start very fastly. हमें आज की क्लास में we have to start with relational model. ठीक है? Relational model क्या होता है? बहुत interesting topic है. So, the document is visible to you all. This is your relational model in database management system. See, we have studied about ER model. ठीक है, ER model क्या होता है, ER diagram क्या होता है. Basically, with the help of ER diagram, you can give the conceptual view कि how your database will look like. ठीक है, you cannot actually just implement it. Implementation cannot be given by the ER model. जो ER model का जो way है of representation database is through ER diagrams. उसमें I have given you a question जिसमें सिर्फ एक अंकुर ने मुझे आंसर भेजा था. It was अंकुर ना? अंकुर, you sent me the response. भी भेजा था. आयुष ने भी भेजा था, yes. और एक मोक्ष अंकुर ने नहीं भेजा था, शायद आयुष ने ही भेजा था. वो मैं तुम दोनों में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ. मोक्ष ने भी भेजा था, बट मोक्ष आपका सही नहीं था. ठीक है, उसका डिस्कशन हम करेंगे, बट आज की क्लास में वी आर स्टार्टिंग रिलेशनल मॉडल. ठीक है, मैंने एक असाइनमेंट पोस्ट किया था कल. हैव यू ऑल गॉट दैट असाइनमेंट? असाइनमेंट 1. Yes, ma'am. बाकी सबने देखा है असाइनमेंट? Yes, class. Have you all seen the assignment? Yes, ma'am. बेटा आपने देखा, बट बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं? बस क्लास ज्वाइन कर लो, म्यूट कर लो, मैम कुछ भी बोलती रहे, हार्डली बॉदर्ड टू यू. इजंट इट? ऐसा होता है क्या क्लास में? See, I want the assignment by for 15th October. ये डेट दिया ना, कुछ ज्यादा दिन दे दिए मैंने. मुझे कम डेज देने थे, पर चलो पोस्ट जो हो गया. 15th अक्टूबर तक मुझे असाइनमेंट चाहिए. ठीक है, इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी असाइनमेंट. Now let's get start with relational model. Now before studying the relational model, let me just discuss you about various keys. ठीक है, थोड़ा कीज के बारे में पढ़ लेते हैं. एक मिनट. All right. So let's just see what are the various keys. So I already told you about the primary key, है ना? Primary key हमने देख लिया था क्या होता है. What is the primary key? हाँ जी. Primary key क्या होता है?
हम जिनका स्पेसिफिक रोल होता है वो। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? देखो, मेहुल, यू वांट टू से समथिंग? ओके, हम वही हाँ जी, बोलो, यू नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। जो यूनिकली डिफाइंड होता है पर्टिकुलर रो और कॉलम के लिए, हाँ, प्राइमरी की उसी को कहते हैं। प्राइमरी की इज अ एट्रीब्यूट which can be which is unique, है ना, for a particular row, and with the help of primary key you could able to determine the remaining attributes, or you can say अगर हम एक relational model की बात कर रहे हैं, relational model में हम जो terms use करते हैं ना, वो हम table use करते हैं, मतलब we are representing our database in the form of tables, and in tables we represent the data in the form of rows and columns, ठीक है, और हर एक रो को relational model में हम क्या बुलाते हैं? tuple. So what we call a tuple? Tuple is basically each individual row. TUPLE. This is a tuple. जो terminologies हम पढ़ेंगे अभी, I will be formally telling you what is a relational model. Before starting with the relational model, I want to discuss about the various keys. तो जो keys होती हैं, first is your primary key, then second candidate key, super key and foreign key. चार तरीके की keys होती है. So you should be clear with all the keys first, and then we'll be starting with relational model. So a key basically plays a very important role when we are describing a data in the form of relational database. So हमने primary key तो पढ़ ही लिया कि primary key is a unique key in a complete database, and with the help of a primary key we could be able to identify individual tuples in a relation. ठीक है, जैसे आपके पास एक student नाम का relation है, all of you just look at here, this is your student relation and this is your person relation, ठीक है, यहाँ पे among the attribute ID, name, address, course, ID is one of the attribute that's value is unique, ठीक है, यहाँ पर person के केस में देखो, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, SSN है, नाम और डेट ऑफ बर्थ could be same, but here the passport number, license number, SSN is again a security number being generated to employees. तो ये values जो है, these values are unique. Now it is upon the developer कि कौन सी easily available value होती है, अगर उसके पास multiple unique values होती है एक relation में, तो ये developer पे डिपेंड करता है कि वो किसको प्राइमरी की सेट करेगा, ठीक है. सो इस केस में हमने स्टूडेंट के केस में आईडी इज बीन सेट एज अ प्राइमरी की, एंड हियर पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन में मोस्टली एसएसएन को हम प्राइमरी की सेट करते हैं बिकॉज दिस इज अ नंबर व्हिच इज जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. पासपोर्ट नंबर और लाइसेंस नंबर तो एम्प्लॉय के हाथ में होता है ना, कि अगर एम्प्लॉय के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो लाइसेंस नंबर कुड बी नल, पासपोर्ट नंबर नहीं है, पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट नंबर कुड बी नल, बट दिस थिंग कैन नॉट बी नल. तो प्राइमरी की का एक हमेशा कंस्ट्रेंट होता है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, so that's why you have to keep the primary key such like कि उसकी वैल्यू हमेशा known हो. So यहाँ पर here you can see the key is being divided into 4 categories. One is your primary key, candidate key, super key and foreign key. So primary key, as I told you, it is the first key in your relation which is used to identify one or the unique instance of any entity. Okay, now what do you mean by instance? Instance क्या होता है? Basically, instance होता है कि जैसे आपने एक टेबल में 10 रो इंसर्ट करी, ठीक है, अब जब आप उस टेबल को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हो तो आपको वो 10 रोज दिखती है. This is a one instance of your table student. Now when you undergo with some insertion or you do some deletion, then the instance got changed. ठीक है, तो instance is the one view that you see when you go with select star table. ठीक है, are you getting it? ठीक है, so primary key always help us to identify tuples in a relation because its value is unique. And one more thing, whenever you set any attribute as a primary key, its value cannot be null after that. ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय टेबल में जो अभी ऊपर टेबल दिखाई थी आपको पर्सन नाम की, उसको वो एम्प्लॉय बुला रहे हैं। एम्प्लॉय टेबल में आईडी कैन बी द प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, एंड वी कैन इवन सेलेक्ट द लाइसेंस नंबर एंड द पासपोर्ट नंबर। यहाँ पे जस्ट लुक एट हियर, इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपके पास एम्प्लॉय आईडी भी है, पासपोर्ट नंबर भी है, लाइसेंस नंबर भी है, ऑल दीज वैल्यूज आर यूनिक, एसएसएन भी है, ठीक है। अब इनमें से यू हैव टू कीप द प्राइमरी की विच इज मोस्ट सुटेबल, so here the employee ID is the most suitable one. So all of you, it is clear to you all what is primary key? Shall we all proceed? Yes, ma'am. Now just look at what is candidate key. Candidate key क्या होता है? देखो कैंडिडेट की जैसे मैंने आपको बताया ना, it is a attribute or a set of attribute that help us to determine, definition वही है, मतलब कि अगर आपके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है जिनकी वैल्यू यूनिक है, और ऑब्वियसली इनकी वैल्यू यूनिक है, then they will help you to determine the tuples individually in a relation. So our primary key तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होता है. प्राइमरी की इज एम्प्लॉय आईडी सिंपली. कैंडिडेट की क्या होता है कि एक से ज्यादा attribute or a set of attributes which help us to uniquely identify the tuples in a relation is being termed as a candidate key. So candidate key में क्या क्या आ जाएगा? पासपोर्ट नंबर भी हो जाएगा, लाइसेंस नंबर भी हो जाएगा, एसएसएन भी हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी भी हो जाएगा. यहाँ पर देखो आपका कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है. A candidate key is an attribute or it is a set of attribute which can uniquely identify a tuple. So आपने प्राइमरी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट, इट इज नॉट अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, which helps us to uniquely identify a tuple or the remaining attributes except for the primary key. जैसे यहाँ पर आपके एम्प्लॉय आईडी तो प्राइमरी की आपने सेट कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग यूनिक एट्रीब्यूट्स है जैसे पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन है, इन तीनों को आप टुगेदर क्या बुला रहे हो? दीज आर द कैंडिडेट्स की, ठीक है. So they are the candidate key. The candidate key is as strong as your primary key. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, वही जो मैंने भी बताया था वही इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर दे टुगेदर पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन टुगेदर दे बीन आर कॉल्ड एज योर कैंडिडेट की. तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, दैट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर बीइंग कॉल्ड एज योर कैंडिडेट की if they are unique in nature and they will help you to identify the tuples in a relation, ठीक है. Now what is super key? सारी कीज ये जो चारों के चारों हैं ये सब यूनिक होती हैं, एक चीज को तो ध्यान रखो, ठीक है. प्राइमरी की इज अ simplest key or a key attribute which help us to identify unique tuples from a relation, ठीक है, उसको तो हम प्राइमरी की बुलाते हैं. कैंडिडेट की क्या होती है? all the keys except all the attributes or the set of attributes except the primary key which are unique in nature help us to identify the tuples in a relation, उसको आप कैंडिडेट की बुला रहे हो. सबको समझ में आ रहा है? all of you are you able to get in what I want to convey? Yes, ma'am. यशस्विनी समझ में आ रहा है? विवेक कुमार, विपिन, सब लोग क्लास में सुनते हो क्लास में कि बस लॉगिन करके छोड़ देते हो? रूपल, you able to get? Yes, ma'am. सागर, ओके. सुपर की क्या है अब? ठीक है, हमने प्राइमरी की देख लिया, कैंडिडेट की देख लिया, अब सुपर की क्या होता है? सुपर की बेसिकली क्या है? ये भी आपका एट्रीब्यूट है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो हमारे को यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है टपल को. बट सुपर की और कैंडिडेट की में मोस्टली डिफरेंस पूछा जाता है. तो सुपर की क्या है? इज अ सुपर सेट ऑफ योर कैंडिडेट की. सुपर सेट और सबसेट का मतलब पता है? Yes, ma'am. व्हाट इज अ सुपर सेट? मैम सुपर सेट हो गया जो सारे के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, और सबसेट सुपर सेट का एक पार्ट होता है. हाँ,
So basically, can we say that a candidate key is a subset of super key and a super key is a superset of candidate key? Can we say that? Yes, ma'am. मैम सुपर की के अंदर वो की भी प्रेजेंट है जो कैंडिडेट की है, ठीक है? तो कैंडिडेट की इज ऑलवेज अ मिनिमल सेट ऑफ की. जस्ट रिमेंबर दिस लाइन. आई जस्ट वांट टू नोट इट डाउन. कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. अभी जब हम ना फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, व्हेन वी स्टार्ट विद नॉर्मलाइजेशन, देन आई विल थरली टेल यू कि कैसे कैंडिडेट की को डिटरमाइन करते हैं, कैसे सुपर की को डिटरमाइन करते हैं. हम एक रिलेशन लिखेंगे, उसमें वी विल डिराइव व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की. तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. अभी वी आर जस्ट स्टडिंग इन द थ्योरेटिकल टर्म्स ना. जब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करेंगे, दैट विल बी इन योर यूनिट 2, जिसमें हमारे पास एक रिलेशन होगा, उसमें वी हैव टू डिटरमाइन द कैंडिडेट की, द सुपर की, उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी. लॉट ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस एरिया की कैंडिडेट की कितनी होगी, सुपर की क्या होगी, इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है. तो ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुत बार पूछा होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और अगर कोई भी स्टूडेंट गेट की प्रैक्टिस करना चाहता है तो आई हैव द गेट बुक्स. अगर किसी को चाहिए, दे मे कैन कम एंड बोरो फ्रॉम मी, ठीक है? क्योंकि अभी तो मेरे लिए यूजलेस है, ठीक है? जिसको चाहिए वो भी ले लेना. सो मैम ई बुक फॉर्म में है. नहीं, मेरे पास बुक है, हार्ड बुक है. आई हैव द बुक जिसमें गेट के प्रीवियस ईयर्स और वो सब सॉल्व होते हैं. तो जो गेट की बुक आती है ना, बेसिकली प्रिपरेशन की, तो आई हैव दैट. और आई हैव सम ऑफ द एनटीए नेट बुक्स आल्सो. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स हैं, मेरे लिए अब यूजलेस है बिकॉज आई हैव डन इट. तो जिनको करना है, दे कैन बोरो द बुक फ्रॉम मी एंड दे कैन रिटर्न इट टू बैक टू मी. आप लोग थर्ड ईयर में हो तो आई सजेस्ट यू कि यू शुड गो फॉर गेट, ठीक है? और उसके बाद फोर्थ ईयर में तो दोगे ही दोगे, थर्ड ईयर में भी दो, ये मैं चाहती हूँ. ओके. सो कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. और सुपर की क्या होती है? जैसे अभी हम इस वाली जो ये वाली जो लाइन है ना, ये ज्यादा क्लियर होगी जब हम कैंडिडेट की डिराइव करना सीखेंगे. सो सुपर की क्या है? जैसे यहाँ पर था, अभी देखो सुपर की में पासपोर्ट नंबर भी आएगा, लाइसेंस नंबर भी आएगा, एसएसएन भी आएगा. एंड सुपर की कैन बी योर कंपोजिट की ऑल्सो. दैट मीन्स उसमें मैं आई कैन गिव द कॉम्बिनेशन ऑल्सो कि मैंने बोल दिया कि एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम. दिस कुड बी ऑल्सो माई सुपर की, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम भी हर एक टपल के लिए यूनिक होंगे, है ना? अगर ऑब्वियसली एम्प्लॉय आईडी तो हर एक टपल के लिए यूनिक है ही. जैसे अगर आपके पास 4 एम्प्लॉय है, 101, 102, 103 एंड 104, और चारों के नाम, एक का नाम, जैसे लेट मी जस्ट गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ओवर हियर, कि जैसे मेरे पास 101 नाम का एक एम्प्लॉय है, 101 आईडी, 102, 103 and 104, and I have the following names. जैसे 101 का नेम है रवि, इसका है राम, इसका है सैम एंड इसका है हैरी, ठीक है? सो यहाँ पे अगर इसका नाम भी रवि है, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय नेम का कॉलम है ना, रवि, राम, रवि, हैरी. तो एम्प्लॉय नेम तो आपका कभी भी एक की नहीं बन सकता, but employee name का connection togetherness with employee ID is always a key. 101 मतलब कि employee ID comma employee name, ये दोनों का composition is unique for every tuple, है ना? मतलब कि 101 comma रवि और 103 comma रवि, ये दोनों अलग अलग हैं. तो इन दोनों, अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है
तो आई कैन डिराइव द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ माई एट्रीब्यूट। अगर रिमेनिंग वैल्यूज मेरे पास है, जैसे इसका एज भी है, इसका कोर्स भी है, इसका ब्रांच भी है, इसका डिपार्टमेंट नंबर भी है, तो अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम पता है, आई कैन डिराइव द लेटर द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स। तो इन दोनों को भी मैं सुपर की बुला सकती हूँ। ठीक है, तो सुपर की क्या हो गया? सुपर की इज अ superset of a candidate key, and it also help us to determine the remaining tuples, identify the tuples in a relation, if I know the value of super key, I can determine the remaining values of the attribute for a particular tuple. ठीक है, for example यहाँ पर देखो इसी में यही एम्प्लॉय टेबल में ही जो मैंने अभी आपको दिया ना, एम्प्लॉय टेबल के अंदर देखो कि एम्प्लॉय आईडी आपका एक एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट। अगर मैं इसको कंपोजिट ले लेती हूँ एम्प्लॉय नेम के साथ, तो ये भी एक सुपर की हो गया। पासपोर्ट नंबर भी एक सुपर की है, लाइसेंस भी है, एसएसएन भी है। तो सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ योर कैंडिडेट की, एंड इट कुड बी कंपोजिट ऑल्सो। ठीक है, वेयर एज योर कैंडिडेट की इज ऑलवेज मिनिमल। मिनिमल मतलब कि अगर मेरा एम्प्लॉय आईडी की वजह से ही मैं बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को निकाल सकती हूँ, तो मेरे को एम्प्लॉय नेम की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉय कैंडिडेट की हमेशा मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, जबकि ऐसा ट्रू नहीं है फॉर सुपर की। ठीक है, क्लियर हो रहा है सुपर की डेफिनेशन? व्हाट इज अ सुपर की? यस मैम। नाउ कम विथ फॉरेन की। फॉरेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। फॉरेन की का नाम से ही क्लियर हो रहा है, फॉरेन की मतलब द की विच डायरेक्टली डू नॉट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर टेबल। फॉरेन की नाम से पता चल रहा है ना आपको कि वो उस टेबल का की नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो, जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ तब आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। लेट्स सपोज आपके पास ये दो टेबल है, जस्ट लुक एट हियर, दिस इज योर टेबल एम्प्लॉय एंड दिस इज योर टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो इस एम्प्लॉय के अंदर एक एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट आईडी, देख रहे हो, दिस इज वन एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट आईडी। और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट नाम की टेबल है, उसका जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, इस डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की क्या है? डिपार्टमेंट आईडी। नाउ व्हेन द की एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल is referencing the key is referencing one attribute of another table, such attribute is being called as a foreign key. मैं फिर से बोलती हूँ, when your, ये देखो, ये आपकी टेबल, इस टेबल को क्या बुलाएंगे हम? रेफरेंसिंग टेबल। एंड इस टेबल को क्या बुलाएंगे हम? रेफर्ड टेबल। just listen to the terms once again. This is the referencing table, क्योंकि ये वाला जो की एट्रीब्यूट है वो किसको रेफर कर रहा है? इसको। एंड दिस इज योर रेफर्ड टेबल। ठीक है, नाउ हियर द की एट्रीब्यूट ऑफ डिपार्टमेंट टेबल इज रेफरेंसिंग द एट्रीब्यूट ऑफ योर एम्प्लॉय टेबल। दिस की इज बीइंग टर्म्ड एज योर फॉरेन की। अब यहाँ पे फॉरेन की वायलेशन हो जाती है। क्या वायलेशन होगी? देखो, आप खुद सोचो ना कि जब अगर डिपार्टमेंट टेबल में 105 नाम का कोई डिपार्टमेंट आईडी है, 105, लेट्स सपोज आपका डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे 105 लिखा है और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिखा है, और कंप्यूटर साइंस का जो भी एम्प्लॉय है वो यहाँ पर है। तो अगर मैंने यहाँ पे 105 नाम के डिपार्टमेंट को ही डिलीट कर दिया, जस्ट लिसन टू माय टर्म वंस अगेन, अगर मैंने 105 नाम के डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, मतलब कि 105 नाम का डिपार्टमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो जो मेरा एम्प्लॉय 105 नाम के डिपार्टमेंट को बिलोंग करता था, उसकी तो वैल्यू इररेलेवेंट हो गई है। आई कैन नॉट डू दैट ना, बिकॉज इट इज रेफरेंसिंग दिस। सो ये फॉरेन की वायलेशन होती है। अभी हम ये सब पढ़ेंगे कि क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस कंस्ट्रेंट। अभी फॉरेन की समझ में आया क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो बहुत क्लियर होगा। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन है? जस्ट देखो, foreign keys are the columns of a table which is used to point to the primary key of another table. So यहाँ पर देखो, this attribute is actually pointing to this attribute of another table. And ये वाला attribute कौन सा attribute है? This is a primary attribute, primary key of another table. So when I have to, जैसे अगर ये वाला
मैंने रेफरेंस सेट कर दिया ना, तो मेरे को इसको डिलीट करने से पहले सोचना पड़ेगा कि किसी और टेबल में ये रेफर तो नहीं कर रहा। तो ये फॉरेन की वायलेशंस होती हैं। तो पहले तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए व्हाट इज अ फॉरेन की। Foreign key are the columns of a table which is used to point to the primary key of another table in a company. Every employee, आपको पता है कि every employee works for any department, so we can't store the information of department in the employee table. देखो, in order to make the table, देखो यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट आईडी के साथ डिपार्टमेंट नेम स्टोर नहीं कर सकती थी। लेट्स सपोज यहाँ पर और भी एट्रीब्यूट्स होते तो आई कैन नॉट स्टोर ऑल द एट्रीब्यूट्स। मैंने इन ऑर्डर टू कीप माय टेबल सिंपल, मैंने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई, एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल बनाई, और डिपार्टमेंट आईडी मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नाम की टेबल में स्टोर कराया, सो दैट with the help of this attribute I can able to find out the department name, ठीक है, या कोई और इंफॉर्मेशन भी जो इस डिपार्टमेंट टेबल में स्टोर होती है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ रेफरेंस इज बीइंग कॉल्ड एज फॉरेन की। फॉरेन की समझ में आया क्या होता है इशिता? यस मैम, आ गया समझ। अच्छा, अब तो मैंने अभी देखो आपको ये सब ये समझ में आया व्हाट आर द वेरियस कीज। हमने पढ़ा प्राइमरी की क्या है, सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिलेशनल मॉडल। जल्दी से रिलेशनल मॉडल देखो कि क्या होता है। बेसिकली आपको सबको पता है कि रिलेशनल मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ईएफ कोड इन ऑर्डर टू मॉडल द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स को हम रिलेशंस की फॉर्म में भी बुलाते हैं। द टेबल्स आर ऑफनली कॉल्ड एज रिलेशंस, जैसे स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय। ये हमने जब वी आर वर्किंग इन एसक्यूएल, हम actually we are creating tables. I can oftenly use a term called relations. Create a department relation, create a student relation. So हम data को model करने के लिए we are using a relational model where we are representing the table, where we are representing the data in the form of rows and columns, that is in the form of tables. Now जैसे कि एक table है स्टूडेंट नाम की, इसमें आपके पास 4 एट्रीब्यूट है। वन इज योर कॉलम रोल नंबर, name, address, phone number and age. You have 5 attributes. इनको क्या बुलाते हैं? Attributes. और एक रो, this is one row, 1 Ram, Delhi, phone number, age. Every row in a relation is being called as a, क्या बुलाते हैं? Tuple. Yes, tuple. Every row in a relation is called as a tuple. ठीक है? Now एट्रीब्यूट आपको पता है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं? द कॉलम नेम्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टेबल, उनको हम एट्रीब्यूट्स बुलाते हैं। और अ रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज अ स्कीमा? रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मैंने सब आपको बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमा? स्कीमा इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। नाउ अगर आप रिलेशनल स्कीमा की बात करोगे तो रिलेशनल स्कीमा में स्टूडेंट का स्कीमा क्या हो गया? स्टूडेंट का स्कीमा रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन एंड एज. So how will you represent the schema? A relational schema represent the name of the relation with its attributes. So student round parenthesis के अंदर क्या लिखोगे आप? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन एंड एज. So if you want to represent a relational schema, you always write the name of the relation followed by its attributes. ठीक है? If a schema has more than one relation, it is called as relational schema. ठीक है? और ये क्या है? एक relation schema. जैसे अगर हम डेटाबेस की बात करें, यूनिवर्सिटी नाम का डेटाबेस है, तो उसमें अगर 5-6 टेबल्स हैं, तो उन सारे टेबल्स के स्कीमा को हम क्या बुलाएंगे? रिलेशनल स्कीमा. ठीक है? टपल मैंने आपको बता दिया कि ईच इंडिविजुअल रो इन अ रिलेशन इज बीइंग कॉल्ड एज अ टपल. रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है? रिलेशनल इंस्टेंस मतलब कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आपकी टेबल में कितनी रोज है, उसको अगर आप देखते हो सेलेक्ट स्टार करके, तो जो आपको एक बारी में दिख रही है रोज, उसको एक इंस्टेंस बुलाते हैं. अब आप उसमें कुछ इंसर्ट कर दोगे, कुछ डिलीट कर दोगे, तो आपका वो इंस्टेंस चेंज हो जाएगा. ठीक है? डिग्री का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री बेसिकली मीन्स बाय द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन. अब यहाँ पर जो स्टूडेंट नाम का रिलेशन है, उसकी डिग्री कितनी है?
For this student relation, you have the degree equivalent to 5 because यहाँ पे number of attributes कितने हैं 5. So degree always stand with the number of attributes in a relation. ठीक है. और cardinality क्या होती है? Cardinality का meaning क्या है? The number of tuples in a relation. देखो cardinality हमने ER diagram, ER model में cardinality क्या पढ़ी थी? 1 to 1, 1 to many, many to many पढ़ी थी cardinalities. वो cardinalities क्या थी ER model में? The number of times a entity is participating, है ना, in a relation. उसको हम cardinality बोल रहे थे. यहाँ पे relational model में cardinality क्या है? Cardinality means the number of tuples in a relation. ठीक है. अब यहाँ पर जो student वाला table है, student वाला जो relation है, just look at this relation. इसकी cardinality कितनी है? और The cardinality for this student relation is 4. Columns आपको सबको पता है. Column is a set of value for a particular attribute. जैसे आपका column, row column, जैसे यहाँ पे row नाम का column है आपका, इसकी attributes, इसकी values कितनी है 1 2 3 4. Age नाम का column है, name नाम का column है, address है, phone number है, तो there are total 5 columns. ये basic terminologies है. Null values क्या होती है? The value which is not known or not available, उसको आप null put करते हो. और आपको पता है कि प्राइमरी की को आप null नहीं put कर सकते, है ना. तो ये आपकी रिलेशनल मॉडल के कंस्ट्रेंट्स में डिफाइन होता है. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? और आई कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स? ठीक है. रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है? डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है? बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रेंट होते क्या हैं. अभी देखो, जब अभी तक हमने जो भी टेबल्स हमने बनाई है अपने MySQL में, वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी कंस्ट्रेंट. हमने क्लाइंट मास्टर बनाया, प्रोडक्ट मास्टर बनाया, कोई कंस्ट्रेंट दिया है अभी तक? नहीं दिया ना. अब हम जब कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, नाउ आई विल गिव कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स मैं दूंगी और उस कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है कि जब आप कोई भी टेबल या रिलेशन बनाते हो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स, तो उस टेबल में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट होने से पहले वो कंस्ट्रेंट वेरीफाई होते हैं कि आप वो कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तभी आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. या इंसर्ट डिलीट करने से या अपडेट करने से वो कंस्ट्रेंट वायलेट तो नहीं हो रहे, ये सब चेक्स पहले किए जाते हैं. देन यू कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट्स. आर यू गेटिंग मी? So there are basically 5 types of relational constraints available. What are these types? Let's just understand. सबसे पहला constraint क्या है? Domain constraint. हाँ जी. What is the meaning of domain constraint? Domain का मतलब पता है क्या होता है? हम किसके लिए काम हो रहा है उसका नाम. हाँ, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर मेरा कोई एज नाम का एट्रीब्यूट है, ठीक है, और उसकी जो मैंने टाइप डिफाइन किया, उसका मैंने टाइप डिफाइन किया इंट, ठीक है. नाउ उसका जो डोमेन है, उसका डोमेन क्या है कि इट कैन ओनली हैव इंटीजर वैल्यूज. मोरओवर उस डोमेन का मतलब ये भी है कि उसकी जो वैल्यूज है दैट शुड बी इंटीजर. मोरओवर द वैल्यू शुड बी एटॉमिक इन नेचर. ऑलराइट. सो द डोमेन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज दैट whatever the type of the particular attribute is defined while creating the table should maintain during insertion also. So domain constraint में, for example, domain constraint क्या कहते हैं? Domain constraint defines the domain or a set of values for an attribute. जैसे age नाम का attribute है, उसका domain क्या है कि it can only have integer value and can only have atomic values. ठीक है. It specified that the value taken by the attribute must be atomic. ठीक है. एटॉमिक मतलब कि मस्ट बी अ सिंपल वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन. ठीक है. फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर दिस सिचुएशन. दिस इज अ टेबल, स्टूडेंट टेबल. मेहुल अटेंडेंस ले लेना आप प्लीज. तो अगर आप ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसके अंदर आपके पास कॉलम है स्टूडेंट आईडी, नेम, एज. ठीक है.
अब यहाँ पे अगर आपने एज को इंटीजर डिफाइन किया हुआ है तो ये a नाम की वैल्यू कैन नॉट अपीयर हियर, तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेशन है। ठीक है, तो डोमेन कंस्ट्रेंट के हिसाब से यहाँ पर जो एज नाम का एट्रीब्यूट है कैन इज ओनली हैविंग अ डोमेन ऑफ इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर कैरेक्टर नहीं आ सकता, तो a इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे डोमेन वायलेशन हो जाएगा और आपके पास एरर आएगा। आप ये ऐसा करके देखना अपने MySQL में, यू ट्राई टू पुट दिस वैल्यूज, तो आपके पास डोमेन कंस्ट्रेंट एरर शो होगा। The value a is not allowed because age can only have a domain of integer values. ठीक है? Now second kind of constraint is called tuple uniqueness constraint. First is your domain constraint. Domain constraint सबको clear है? Yes, ma'am. Tuple uniqueness constraint क्या कहता है? नाम से ही पता चल रहा है। Tuple का मतलब सबको पता है rows. ठीक है? Rows uniqueness constraint मतलब कि all the tuples that you are storing in your database must be unique. We cannot allow a duplicate values. जैसे यहाँ पर देखो, all the tuples must be necessarily unique in any relation. जैसे यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर कोई violation हो रहा है? Yes. Is there any violation? Tuple uniqueness violation हो रहा है यहाँ पर? All the tuples are unique or same? Unique. यूनिक है, तो टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, देयर इज नो वायलेशन। नाउ जस्ट कंसीडर दिस एग्जांपल 2। नाउ लुक एट हियर, दिस टपल इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस टपल, सो यहाँ पर आई एम हैविंग द वायलेशन ऑफ टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। आई कैन नॉट हैव द सिमिलर टपल्स इन अ सेम रिलेशन, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है for every individual tuple. अगर मैं एक tuple बोल रही हूँ तो tuple is made up of student ID, name, age. इन तीनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। There may be a case कि आपका नाम सेम है, there may be a case कि age सेम है, but तीनों together should not be same. Tuple is made up of all the attributes of a table. ठीक है? So similar tuples are not allowed according to your tuple uniqueness constraint. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Now what is a key constraint? Key constraint क्या होता है? देखो, as the name specifies, key क्या होती है? A unique attribute. ठीक है? Unique attribute that help us to identify tuples in a relation. अब key constraint क्या कहता है कि इसकी वैल्यू जो है null नहीं हो सकती और इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ये दो चीजें is being told by this unique constraint. Unique constraint specifies that in any relation, all the values of primary key must be unique in nature and they cannot have a null value. ठीक है? So just look at this example. If I am saying that student ID को मैंने underline किया हुआ है, therefore student ID is a primary key. Now, according to the key constraint, primary key should be unique in nature, but here the values of primary key are same for two particular tuples. So this is a particular case of violation of key constraint. ठीक है? And if I don't know the value, तो null values भी allowed नहीं है। ठीक है? तो ये भी violation हो जाएगा। Now very important constraint is entity integrity constraint. पूछ लेते हैं entity integrity constraint क्या होता है? Domain integrity constraint क्या होता है? Entity integrity constraint क्या कहता है कि नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की, वही बात को रिपीट कर रहा है जो ऊपर की कंस्ट्रेंट है ना, उसी चीज को, कि नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कंटेन अ नल वैल्यू। ये तो आपको पता है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, उसी चीज को बोला हुआ है दोबारा से कि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की can contain a null attribute, and this is because the presence of null value in a primary key violates a uniqueness property. Uniqueness property को violate करेगा क्योंकि अब आपको वैल्यू नहीं पता